पूरन परमेश्वर सुखदाई, पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान। देह प्रीत साधु संग स्वामी, देह प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दामोदर, निर्मल कथा ज्ञान। गोपाल दयाल गोविंद दामोदर, निर्मल कथा ज्ञान। नानक को हर कै रंग रंग हो, चरण कमल संग ध्यान। नानक को हर कै रंग रंग हो, चरण कमल संग ध्यान। सो कहो टल गुर सेविय, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। हर नाम निर्मल अस अपारा, गुर का शब्द पराया भंडारा। हर नाम निर्मल अस अपारा, गुर का शब्द पराया भंडारा। नाम कान बिन और सब विधान, माया मोह जलय अभिमान। गुरमुख हर रस रखै कोय, सदा आनंद होवे दिन राति। भूलै भाग प्राप्त होए राव, शब्द दीपक करते तरह होए। जो जाकै सो निर्मल होए, निर्मल नाम होमै मल होए। साथी भगत सदा सुख होए, जिन हर रस राख्या सो हर जन लोग। सदा हर्ष नाही कदा सोग, आप मुक्त अवरा मुक्त करावै। हर नाम जंगा हर से सुख पावै। फिर सतगुर सब पूरी सिलवाए, आनंद का सांस न पाए। सतगुर मिलै सब विघ्न बुझाए, नानक नाम नाम सुख पाए। सतगुर मिलै सब विघ्न बुझाए, नानक नाम नाम सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, अपनियां मनोबिरतियां नूं इकागर करो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कल युग दे पोएट हाजरा हजूर, जाहिरा जहूर, सर्व कला भरपूर, तख्त चवर दे मालक, जागत जोत, बाणी दे प्रकाश दे चरना ते शीश झुकाओ ते जपो सतनाम श्री वाहिगुरू। आप जी ने अमृत वेले जो सतगुरु जी ने बख्शिश भरिया पेतर हुक्मनामा बख्शिश किया, आप जी ने इस वक्त
ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਸਨਾ ਫਿਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਜਪੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਲ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡੰਡੇ ਕਿਹੜੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ, ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਉਸ ਵੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ। ਹੁਣ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਫਿੰਤੂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਝੂਣ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੂਣੇਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਨਗੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਨਗੀਆਂ, ਝੂਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਹਿ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਉਹ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ दिन ऐसा आया, महात्मा के पास दास भी बैठे, ते एक किसी ने आके ये सवाल कर दिता
ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ? महात्मा बोले कि तेरे मन विच तरक है, रब नहीं? कहने लगे जी एक सूई दे नक्के ते साइंस ने इतनी तरक्की की, विज्ञान ने माइक्रोस्कोप द्वारा हजारां कीटाणु नजर आ जाते हैं, फिर रब क्यों नहीं नजर आता जब सतनाम श्री वाहिगुरू। तर्क करने वाले ने सवाल किया, दिखता नहीं। महात्मा बोले भाई तेरा नाम की है? सवाल करने वाले थे। आख्या मेरा नाम श्याम सिंह है। तेरे पिता का नाम की है? कहने लगे मेरे पिता का नाम निहाल सिंह है। कहते तू मनदा है कि निहाल सिंह तेरा पिता है? कहने लगे जी बिल्कुल, मैं निहाल सिंह का पुत्र हाँ। कहते असी नहीं मनते, सानू दिखदा नहीं। जब सतनाम श्री वाहिगुरू। असी नहीं मनते तू निहाल सिंह का पुत्र है, क्योंकि सानू तेरा पिता दिखता नहीं। कहना जी ये किवें हो सकता है? मैं निहाल सिंह का पुत्र हाँ, तुसीं मेरे नाल चलो, मेरे घर चलो, मैं घर जाके तुहानू दिखा देंगा मेरा पिता है। महात्मा बोले जे तू अपने घर जाके तू अपना पिता दिखा सकता है, तू मेरे नाल भी मेरे घर चल ते मैं भी तेनू अपना पिता दिखा सकता। जब सतनाम श्री गल तां घर जाण दी है, राह तां घर जांदा है। बिना घर जाए तो जे अगर कोई किसी नू अपना पिता नहीं दिखा सकता ते बिना घर जाए तो रब भी वेख्या नहीं जा सकता। जब सतनाम श्री घर दिखाया है, घर मैं घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरख से जान दिखाया है ना। मेरे सतगुरा ने घर दिखाया है, उस घर दे विच पहुंचा के दिखा दिता है कि रब है। जब सतनाम श्री के परमात्मा है। मैं संक्षेप करा, समा घट है, विचार ज्यादा पेगी। भरोसे की गल है कि पहला मनना पेगा कि रब है। दूसरी गल ये भी मनना पेगा कि रब मैनू प्यार करता है। जब सतनाम श्री भाई ख्याल करना, मैं कहां कि मैं प्रेम करदा, प्रेमियों का वासा सच्चे की दरगाह विच है, तो जे अगर रब मैनू प्रेम नहीं करता तो मेरा प्रेम किवें सफल हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता कि मैं प्रेम करा तो मैंने प्रेम ना करे। गल सिदक दी है, ये तस्लीम करना पेगा, मनना पेगा कि रब मैनू प्यार करता है। मैनू ही नहीं बल्कि सारियां नू प्यार करता है। जब सतनाम श्री मैनू ही नहीं बल्कि सारियां नू प्यार करता है, क्योंकि रब को प्यार ही प्यार है। रब दा खजाना ही प्यार नाल भरिया होया है। मैं भी कह दिया कि प्यार ही रब है। जब सतनाम श्री प्रेम ही रब है। तीसरी गल सिदक वास्ते ये समझना जरूरी है कि रब मेरे अंग संग है। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, ये नहीं जिवें सिख भुलेखा खाई बैठा है कि गुरु तो सिर्फ गुरुद्वारे विच ही रहिंदा। जब सतनाम श्री कितना वड्डा भुलेखा है, कितना वड्डा भुलेखा है कि गुरु गुरुद्वारे च ही रहिंदा, इसे करके बाहर जाके झूठ बोलता है कि गुरु मेरे नाल नहीं। इसे करके बाहर जाके अपने कदमां नूं माड़े पासे लै जांदा कि भुल गया कि गुरु मेरे नाल नहीं। कितना वड्डा भुलेखा सिख खा रहा कि सिर्फ गुरु गुरुद्वारे विच रहिंदा, भाई मत्था टेक आए, हाँ गुरु दे दीदार कर आए, बस ठीक है, ते बाहर जाके जो मर्जी कीता जाए कि केड़ा गुरु देख रहा है। जब सतनाम श्री ते नाले पढ़ी जाता है गुरु मेरे संग सदा है, नाले पढ़ी जाता है। इस गल नूं मनना होएगा कि गुरु अंग संग है। ये मनना होएगा कि सच्चे की प्राप्ति लिए मनना पेगा कि सच्चा मेरे अंग संग है। भी ये तो गल्लां ने
सिदक ते भरोसे नूं कायम रखने वास्ते। लेकिन इसका अभ्यास रूप की है, अगली गल विचारनी है, क्योंकि आ शब्द शायद सच्चे पातशाह जी ने आखो धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं गुरमुख बारे फिर हर रस चख है। आप इस अवस्था तक पहुंचना है। इस अभ्यास को कैम किवें रखा जाए, एक थोड़ी जी मिसाल तुसीं वेखना। बच्चा पिता दे नाल जांदा है, तुरदा है, ये जानदा है कि पिता मेरा मैनू प्यार करता है, यह भी जानता है कि मैं पिता नूं प्यार करदा। प्यो पुत्र का प्यार हुंदा है छोटी अवस्था च, पुत्र प्यो नाल प्यार करता है, प्यो पुत्र नाल प्यार करता है। यह भी जानता कि मेरे नाल नाल तुरिया, मैं उंगल फड़ी हुई है। अंग संग वाली गल भी उसनूं नजर आउंदी है, पिता मेरे नाल है, मेरे नाल तुरिया, नजर आउंदा है, तुरिया। यह भी जानता है कि पिता समर्थ है, मेरे नालों समर्थ है। जदों ये तीन गल्लां बेटे के मन में आउंदियां ने, वो तुरदे 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 निडर होके तुरदा है, अंदर उसने हिम्मत आ जाती है, उत्साह आ जाता है। मैं जिस काम नूं मर्जी हथ पावांगा मेरा काम हुंदा जाएगा, क्योंकि पिता मेरे नाल है। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, क्योंकि पिता मेरे नाल है। उसके मन च हिम्मत पैदा होती है। फिर जो पता हो ना मेरे नाल कोई नहीं, रस्ते च पंबल भूसियां च खाई जाता है, ठेडे खाई जाता है, तो समझ तो बाहर हो जाता मैं की करांगा, हुण मैं की करांगा। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, हिम्मत ही नहीं बजती। एक पिता दे नाल होण दे नाल इसके अंदर इतनी हिम्मत बजती है, इस अंदर इतना सिदक ते भरोसा आ जाता है। कहना कोई गल नहीं, जिस काम हथ पावांगे काम पूरा हो जाएगा। तो यह सच जे जदों इस प्राणी नूं यह भरोसा हो जाए कि वाहिगुरु है, परमात्मा है, मेरे नाल है, यह भरोसा हो जाए, मैं उसकी हजूरी विच रहना, उसकी हजूरी विच जीवन बतीत करदा, मैं उसकी हजूरी विच रहना, मैनू वेख रहा मेरे नाल है, तो उसके अंदर उत्साह ते हिम्मत पैदा होएगी। उस उत्साह ते हिम्मत के नाल कदम पुटता जाएगा, उस जीवन की मंजिल वाल एक एक कदम बढ़ाई जाएगा। वो जीवन की मंजिल किते है? प्रभ जीओ अंतर चांदना, चांदना चांदन आंगन, प्रभ जीओ अंतर चांदना। वो पहुंचेगा उस मंजिल पे, जरूर पहुंचेगा, पर विचार करनी पेगी किवें पहुंचेगा। दूसरी गल, जिस दे नाल तुरदे होइए, जिस दे नाल तुरीए, अपने तो वड्डे नाल तुरीए ते हमेशा ही तुरदे रहिए, साथ हमेशा बनया रहे, तो तुरन वाले के मन में गल जरूर होती है कि किधर मैं ऐसा कदम ना पुट लवा, ऐसा कर्म ना कर लवा जिस दे नाल मैं तुर रहा, लोकी ये ना कहन ये तुरन वाला जिस दे नाल तुर रहा है उसके गुणा नूं नहीं कबूलता, दूसरा प्रभाव दे रहा है। जब सतनाम श्री, ठीक है। हुण मेरे परमेश्वर के अंदर गुण है निर्वैर का, तो जे अगर परमेश्वर के नाल तुरन वाला किसी नाल वैर ही करी जाता है तो लोग की कहेंगे परमात्मा का बंदा है, ये सच्चे का बंदा है। ते सच्चे दे नाल तुरन वाला तो प्यार करेगा ना, तो तुसा वैर क्यों करेगा, किसी नाल वैर क्यों करेगा? जद के निर्वैर का गुण है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जब सतनाम श्री वाहिगुरु, क्योंकि हरि दे विच जो गुण ने, परमात्मा जो गुण ने, ते जे अगर वो बंदे विच गुण आ जाएंगे तो हर का सेवक सो हर जिहा, वो हर जिहा बन जाएगा। जे अगर सच्चे दे दरगाह दे विच बैठना है तो सच्चे नाल प्रेम करना है तो वो गुण ग्रहण करने पैणगे जेड़े सच्चे दे गुण ने। निर्भव होके, निर्भव पढ़ के निर्भव बनना पड़ेगा। जो सच्चे दे
गुण जो ग्रहण करने पैणगे। ये यकीन करने वाली गल है, ये ख्याल करना। हुण सच्चा सारे ते दया करदा है, सच दया का स्वरूप है, ते फिर तां जो सच्चे दे रहनमाई विच तुर रहा है, भरोसे विच तुर रहा है, उसनूं दया का गुण हासिल करना पएगा। हुण मैं तीसरी गल कह रहा, एक बड़ी कमाल की कला वरतदी है भरोसे विच, सिदक दे विच बड़ी कमाल की कला वरतदी है। वो कला की वरती है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी भी उस कला का जिक्र करते हैं। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। बड़ी ज्यादा कई बार है, पर रस बड़ा आ रहा है इस कला नूं समझ के। जो पार ब्रह्म से कोई भरोसा करता है, सच से भरोसा करता है, एक कला वरतदी है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी नूं अज तक दुखी नहीं किया। वो किसी का दुख देख के खुश नहीं होंदे, वो जब दुखी देख के खुश नहीं होंदे तो प्रभु दे नाल तुरन वाला भी किसी नूं दुखी देख के खुश नहीं हुंदा, बल्कि दुखी देख के उस दुख की निवृत्ति लई मदद करता है। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जे किसी कारण करके उस कोलों किसी नूं दुख मिल गया, जे किसी कारण करके अनजाने विच भी जे उस पासों किसी का दिल टुटिया, तो फिर पता है कितना पश्चाताप करता है, तरले कढ़दा है, मिन्नतां करदा है, हाड़े कढ़दा है, सतगुरु मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, मेरे को भुल हो गई, मेरे को गुनाह हो गया, मैं तेरे बनाए हुए जीव नूं दुख दिता है, मेरे को भुल हो गई, मैं किसी का दिल नहीं दुखाया रब्बा, मैं तेरा दिल दुखाया। जप सतनाम श्री, क्योंकि हर एक दे अंदर पार ब्रह्म जी तुसी वसदे हो। जप सतनाम श्री वाहिगुरू, पार ब्रह्म जी हर एक दे अंदर तुसी वसदे हो, मैं आप जी का दिल दुखाया। इत्थे एक विचार होर हुंदा है, देखिया गया है, असीं ये भी वेखिया है, तुसी भी वेखिया है, चाहे कोई चोर है, चाहे कोई डाकू है, चाहे कोई आम दुनियादार है, इंसान है, चाहे कोई संत है, मैं सारे शब्द बोल देते ने भाई, जदों उसके पासों बदी हो जाती है ना, जदों उन्होंने पासों नेकी की बजाय बदी हुंदी है, एक गल तो मैं यकीन नाल कह सकदा, चाहे डाकू भी होवे, चाहे चोर भी होवे, उसका चित्त उदास जरूर हुंदा है। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, किसे नाल माड़ा करके एक बार चित्त जरूर उदास होता है। हाँ, ये ठीक है, जेड़े वकार करने वाले ने, जेड़े अपराध करने वाले ने, वो उदासी नूं, आई हुई उदासी नूं, कीते हुए माड़े कर्मां दे फलां नूं भुला के वो की करते ने, कठोर बनी जाते, जाए कह लीए वो उस उदासी नूं भुलाउण लई नशियां दी वरतों कर करके और ऐसे साधन लभ के जिहड़ी उन्हां दी चिंता नूं भुला देण। आ लोकी की करते हैं, थोड़ी चिंता आ गई तो नशा पीण लग पैंदे। वो सोचते ने शायद नशा चिंता दूर करता है, पर सच तो यह है, वो नशा दूर नहीं करता, चिंता दूर नहीं करता, बल्कि चिंता नूं वधाई जाता है। कदे सोचना, कदे शराबी की चिंता दूर हुई है? जिस वक्त भी उसका नशा उतरेगा, चिंता होर वधी हुई, उस संसार के समाज चो जाता है, परिवार की प्यार चो जाता है, जीवन के आचार चो जाता है, हर तरफ ही डिगदा है। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, मैं संखेप कर रहा, उस उदासी नूं खत्म करने का यत्न किया जाता है। वो जिवें जिवें नशियां की वरतों करता है, तिवें तिवें अपराध भी ज्यादा करता है, तो कठोर भी बनी जाता है। दूसरी गल, दुनियादार लोग की करते हैं,
ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਈ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਆ ਖਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ, ਉਦਾਸੀ ਆਏਗੀ, ਕਲਪਨਾ ਆਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਆਏਗੀ, ਝਮੇਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੰਜਾਲ ਪੈਣਗੇ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਦੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੋਸ਼ ਬਦੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਰੱਬ ਹੀ ਬਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਈ ਅੰਗੂਰ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੰਗੂਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਅੰਗੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ? ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਟਕਾ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਅੰਗੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਦੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਖਿਆਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਰੇ ਨੇਕੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਗੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇਹ ਬਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ
तपा तपा के गंदगी पैदा कर करके तू मद बनाना, शराब बनाना। पर वेख इधर गुड़ मिठा है, पानी परमेश्वर दा। साहिबा ने की किया, उस पानी ते मिठे नूं रला के अग नहीं बाली। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, अग नहीं बाली, अग का इस्तेमाल नहीं किया, गंदगी नहीं पाई। जब सतनाम श्री वाहिगुरू निर्मल रहन देता, हर अमृत हर जल पाया, सब लाती तिस तिस के ओदा पार ब्रह्म की बाणी पा दी। जब सतनाम श्री पार ब्रह्म के नाम का रस पा दिता, हर अमृत नाम रस अत भला। जब सतनाम श्री वाहिगुरू पा देता, तो फिर विचार कर बदी किसने पैदा की? जो कोई परमात्मा की मर्जी तो उल्ट काम करेगा, बदी पैदा होगी। जो कोई परमात्मा की मर्जी तो उल्ट काम करेगा, उत्थे दुख आएगा। खेड के मैदान में सारे खिडारी जानते हैं, जे कोई खेड के नेम नूं खिडारी तोड़ देवे तो रैफरी की सीटी बजती है, उसनूं पेनल्टी मिलती है, सारे जानते हैं। एक खेड के कॉन्स्टिट्यूशन, एक खेड के विधान, एक खिडारी के लिए वो सारा विधान अपनाना पड़ेगा जो खिडारी लिए चाहिए। जे खेड के मैदान के खिडारी उस नेम नूं तोड़दा है तो रैफरी की सीटी बजेगी, उसनूं पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी उसनूं भोगनी पेगी, तां अगली गेम का आरंभ होएगा। गेम का फिर मुड़ के तां आरंभ होएगा जो उसनूं पेनल्टी भोगनी पेगी। जे खेड के मैदान में खेड के नेम नूं तोड़न करके खिडारी नूं पेनल्टी लगती है तो उसनूं भोगनी पैंदी है। ते गल पक्की जे मनुखता के नेम नूं जदों कोई मनुख तोड़ेगा तो उसनूं भी दुख की घंटी वजेगी। बेशक वो सुने चाहे ना सुने, वो दुख की घंटी भोगनी पेगी। दुख आउंदा ही इसे करके जब सतनाम श्री असीं सुनते जी, फिर भोगी जाते, घंटियां वजदियां रहिंदियां, भोगी जाते। इस करके मनुखता के नेम नूं तोड़ना जिहड़ा है दुख नूं पैदा करना। मनुखता के नेम ने नेमी बनना पेगा। इस करके मनुख नूं नेकी का सुभाव बनाना चाहिए। क्यों? जेड़ा पिता नेकी का स्वरूप है, जेड़ा सच्चा नेकी का स्वरूप है, उसनूं पाउण वाले आ तैनूं भी उसे दे स्वरूप विच समाउणा पेगा। जब सतनाम श्री वाहिगुरू। गल सिदक दी करदे करदे एक गल आई है भाई, दुनियादार भी गुरजेवियां विच ने, कारण नहीं लगते, पर एक थां है जिथे उदासी भी दूर होंदी है तो उदासी का कारण भी लभ्या जाता है। वो है सतसंगत। जब सतनाम श्री, वो है सतसंगत। सतसंगत विच जिथे सत का निवास है, सतसंगी सत नूं वेखदा है, सतसंगी सत सुनदा है, सतसंगी सत बोलता है, सतसंगी सत विच निवास करता है। फिर जिहड़ा आवे सतसंग विच ते इत्थे आके झूठ मंगे ते शायद कहते वो सतसंगी नहीं हो सकता। जब सतनाम श्री आप हुण विचार करिए, अज तो बाद एक ख्याल करना कि तुहानूं वाहिगुरू ते भरोसा है ना, ते यह भी भरोसा है कि अंतरजामी है, यह भी भरोसा बिन बोलिया सब कुछ जानता है। तो आप इस तरह करया करिए, आप वाहिगुरू नूं ही मंगिया करिए। तुसीं वेखना जदों असीं सुभाव बना लिया ना, सतसंगत गुरुद्वारे आके वाहिगुरू तो बिना होर कुछ नहीं मंगना, तो वाहिगुरू ने तुहाडे सारे घर भर देने ने। और जिस घर वाहिगुरू चला गया दुख का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस घर वाहिगुरू चला गया उत्थे सोच का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिस घर वाहिगुरू चला गया उत्थे क्लेश का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस घर वाहिगुरू चला गया उत्थे जहर का सवाल नहीं पैदा होता। जिस घर वाहिगुरू चला गया उत्थे अमृत ही अमृत होएगा। जब सतनाम श्री। ए बच्चे, तू दुध ही ना मंगी जा मां दे पासों, तू मां नूं मंग। जे अगर दुध मंगदा रहा, हो सकता है तेरी मां तेनू ना मिले, फिर तेन दुध कौन देगा? जे तू मां ही मंग लवे
तेन पालेगी भी, दुध भी देगी, तेन निग भी देगी, संभालेगी भी। जब सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ वाहिगुरु वाहिगुरु मंगण वाले सतसंगी, वाहिगुरु वाहिगुरु करन वाले सतसंगी। तू वाहिगुरु नूं ही मंग, तू दाता क्यों मंगी जाना है? दाता ने तो फिर विरस जाना है। हो सकता है तू दाता मंगता रहा, तेन वाहिगुरु ना मिले। दाता दे नाल प्यार पा बैठे, दातार विसर जाए। चंगी गल है कि तू वाहिगुरु नूं ही मंग। साहिब है झूठा मंगण जे कोई मांगे, तिसको मरते घड़ी ना लागे। इसका भाव है कि सतसंगी वो है जिहड़ा सतगुरां दे कोल आके झूठी वस्तु ना मंगे। जब सतनाम श्री, झूठी वस्तु का भाव उसनूं कहंदे ने ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਹ ਵਸਤੂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਸਤਸੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ बड़ी मुश्किल दे नाल भागा करके सत्संग विच आए, इत्थे आके कपड़े वेखदा पिया, एक दूजे डिजाइन वेख रहे। मैं कहांगा रब बचावे, जब सतनाम श्री गुरु बचा लवे। इत्थे तां भाई सत नूं वेख्या करो। ते इत्थे आके भी जे अगर कोई सत नहीं बोलता, झूठ बोलता, इत्थे आके भी एक दूजे की निंदिया ते झूठ बोलिया जा रहा है, तो वह सत्संगी नहीं हो सकता। ये गल पक्की जे। इत्थे आके लभना सत नूं चाहीदा, सत नूं लभना चाहीदा। दास एक थां ते गया, सरोवर के किनारे ते शीश चुकदा है, श्री तरनताਰਨ साहिब जपो सतनाम श्री। ते एक बजुर्ग बाबा जी भी पहुंचे हुए सी, वो ना धरती ते हाथ मारी जाते सी, जपो सतनाम श्री। पुछया दास दे नाल 15-20 गुरमुख होर सन। पुछया बाबा जी की गुम गया तुहाडा, तुसीं धरती ते लभ रहे हो। चाननी सी ट्यूब दी जग रही। बाबा जी बोले मैं पिछले साल 1100 रुपया दे के गया सी, मैं देख रहा सी कि सिर पत्थर ते मेरा नाम भी है कि नहीं। जब सतनाम श्री ख्याल करना, असी गुरु घर भी आके गुरु का नाम नहीं लभण आउंदे, अपना नाम लभण आउंदे। फिर असी सत्संगी किवें होए? कि तां गुरु घर नाम लभण सी गुरु का, परमात्मा का, पर अफसोस की गल है कि असी गुरु के नाम की बजाय अपना नाम लभ रहे। ये असी मन झातियां मारीए, जे साडी एक रसीद ना कटी जाए साडे मन औखा हो जाता। इको है गुरु ते परमात्मा। मनुख दान नहीं देता हुंदा, मनुख भेटा देता हुंदा। सतनाम श्री वाहिगुरू इसने भुलेखा पा दिता, असीं एक बोरी कणक भी जले और दान की। दान शब्द जोड़ा है श्री गुरु देता है। परमात्मा दान देता सारे नूं। परमात्मा दी दित्तियां होईयां दातां को भेटा करने वाला कहे कि मैं दान दिता है। हमेशा ही बड़ा छोटे दान देता है। परमात्मा बड़ा है, बहुत बड़ा है। भला परमात्मा को कौन दान देगा? परमात्मा तो भेटा दी जाती है। जब सतनाम श्री अपने तो बड़े भेटा दी जाती है। तो जब उसे आके भी कोई अपना नाम लग रहा है तब सत्संगी नहीं हो सकता। मैं विचार करें, संक्षेप करा कि सत्संग दे आके उदासी के कारण लगे जाते हैं। कदे जमाना कदे जो उदास हो ना, सत गल गुरु घर आ जाना, अजमैश करना, इतने बैठ जाना। पर मैं कहूँगा जो बैठना ना अपना थोड़े हम छड़ देगा, दूर से सुट देगा। कहना मथा टेकने की शांति मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद वाणी सुनना, विचारना, तो देखना जब अपनी उठ के जाओगे तुम्हारी उदासी भी होगी। किसी समझो को सहारा मिल गया, मेरे को आसरा मिल गया। आसरा शब्द बड़ा बोल रहा है। आसरा हमेशा वो हो सकता है, इको एक आसरा, इको एक ओढ़, इको एक मोड़ लंघ है। जिसमें खुद किसी आसरे की लोड़ नहीं होती, वो सारे में आसरा देता है। सतनाम श्री परमात्मा वो
वो आसरा है, उसमें आसरे की लोड़ नहीं, वो सारे आसरा मिल जाए। मैं दो शब्द इतने सामने आए हैं। एक शब्द है ज्ञान, एक शब्द है प्रेम। जो सतनाम जी ये विचार करें जरूरी होगी था असी उस गल तक पहुंच सकन। मैं कहूँ क्या कि सत्संग आने नाल कोई क्रांति हुई है। मैं प्रेम के ध्यान की गल करा, समा भी पूरे शब्द की समाप्ति करनी है। विचार तो बड़ी अमूली है, अभी आ रही है। इस मुद्दे को जानना की है, अंधेरा की है, सत्य की है, असत्य की है, नेकी की, बदी की, घाटा की, नफा की। जब सतनाम श्री होएगी तो ताई असं पहुंचांगे ना सच्ची दरगाह में। मैं इन गल्लां इन्हें समझ नहीं कर सकता। सतगुरां की बाणी बड़ी अथा है, शब्द बड़ा अमोलक है जिस शब्द की विचार करनी है। पर मैं सिर्फ दो गुना करके शब्द तक पहुंच जाना, बाकी ताके भगवान की तस्वीर अगो गुना सुनना ध्यान और प्रेम। गला सारे ध्यान दिया करते थे और गला सारे प्रेम दिया करते हैं। भाई आप प्रेम की गल्लां कीतियां नहीं, ध्यान दी गल्लां कीतियां नहीं। गुरमुख प्यारे ध्यान का संबंध बुद्ध नाल हुंदा है और प्रेम का संबंध हृदय नाल हुंदा है। कदे किसी बुद्ध ने प्रेम नहीं किया। ख्याल करना हृदय के प्रेम टिकता है। दो गल्लां तो बड़ी स्पष्ट ने। ध्यान का संबंध बुद्ध नाल हुंदा है, प्रेम का संबंध सिर्फ हृदय। प्रेम का डायरेक्ट जोड़ परमात्मा नाल हुंदा है और ध्यान का सीधा संबंध सिर्फ आनंद नाल हुंदा है। सिर्फ आनंद। इस शब्द को याद रखना कि आनंद, क्योंकि अगले पंक्तियां विचार करते हैं जो ऐसे आनंद नहीं भूल गए तो शायद असं पूरी गल नहीं समझ पाओ। बुद्ध का संबंध आनंद नाल है, क्योंकि ध्यान है, ध्यान आनंद, ध्यान की सीमा आनंद है, प्रेम की सीमा परमात्मा है जो सतनाम श्री है। पर एक जोड़ा ध्यान है बुद्ध ख्यालों में जन्म देती है। जो ख्यालों में बुद्ध जन्म देती है तो ख्याल होंगे ने बंदे के अंदर। जो ख्याल प्रगट करते करते ख्याल प्रगट करते करते ख्याल प्रगट करते करते ख्याल प्रगट करते करते समय ऐसा आ जाए कि ख्यालों का ही अंत हो जाए। जो सतनाम श्री आई उसमें फिर ध्यान करें। एक बार फिर जितनी देर तक हम लोगों के अंदर ख्याल पैदा हो रहे हैं तब ध्यान नहीं। पता हो रही है कि जो ख्याल पैदा हो ही जाते हैं फिर ख्याल से बाहर ध्यान कितने कथा कीर्तन हो रहे, शब्द सुनाया जा रहा है, ध्यान का खारिज करता है तो ये भाई ख्याल का खारिज करते हैं वो कीर्तन में ध्यान देते हैं। नवाज पढ़ी जा रही है नवाब के वालों साहब श्री गुरु नानक देव जी कोल ने तो साहब बोलते हैं तेरे ख्याल का कोई बात नहीं भाई वो सारा खुशी है तो तेरा ध्यान कितने पक्की है। जो ख्याल फुरने सोचते 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 ख्यालों उतना संकोच लिए कि ख्यालों का ही अंत हो गए उस वक्त गैर हाजिर मन हाजिर हो जाएगा जब सतनाम श्री आए। एक समझनी है जे अगर ध्यान गया नाम लै तो मन प्रगट गया। ठीक है, एक शब्द है नाम लै मन प्रगट गया। इसका मतलब नाम को बिना मन प्रगट नहीं सी, मन तो सी पर गल समझनी पड़ेगी। चार शब्दों एक गल कह के गल नहीं होगी कि मन की सी मेरा प्रगट नहीं सी तो हम प्रगट हो गया नाम लेने गल की है। तो सारे कहते हैं भाई मन पापी है सतगुरु कह रहे हैं नाम लै
कमाल कर गए। वे शरीर भी सुरखू हो गया पापा को, ये फिर अपन विचार कर और विचार से ध्यान के प्रेम जो ख्यालों का अंत हो जाए तो ध्यान हो जाए। उस वक्त अवस्था की होती है जो ख्यालों का अंत हो जाता है तो एक आनंद की अवस्था बनती है। तो वो कोई ख्याल नहीं जिसे सिख गया उसे अपने आप उतार के रख लिया। कीर्तन टिक गया या कीर्तन बैठा, किसी शब्द टिक गया तो शब्द बैठा, उसको कहते हैं आनंद। जब सतनाम श्री हूँ तो ऐसा आनंद आ गया उसको तो अपने कारोबार भी चिंता नहीं, ख्याल कर ले। हूँ कीर्तन सैन नाई सुन रहे हैं, सैन नाई सुन रहे हैं, कीर्तन सुनते 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 ख्यालों का अंत हो गया। उनका राजे की सेवा करने की याद नहीं सैन आई, आनंद आ गया। बोले कि मेरा समय से राजे की सेवा करने वास्ते मिल गया, बोल गए हम, आनंद आ गया। संत बाबा परम सिंह मोती मलदान वाले नहर के किनारे पे बैठे ख्यालों का अंत हो गया, आनंद आ गए। बोल ही गए कि आज किसी अफसर ने मिलिट्री संघ परेड देखनी है आगे, बोल ही गए कि मैं परेड नहीं करूंगा जब सतनाम शुरू, आनंद आ गया। बोल गया ख्यालों का अंत होया, आनंद आ गया। इसमें कहते हैं ध्यान का संबंध सिर्फ बुझ ना है तो बुझ में आनंद देना, पर एक गल के अगर तोड़ बन जाए तो ठीक है। जे अगर ध्यान की सूई में शब्द का धागा पा दिए जब सतनाम श्री वाहिगुरू, जे अगर शब्द का धागा नहीं तो सिर्फ आनंद है, सिर्फ आनंद, ओनली आनंद। वो तो बिखर जाएगा तो फिर ख्याल आ जाएंगे, बिखर जाएगा, फिर ख्याल पैदा हो जाएंगे, टूट जाएगा। पर ये अगर सुई विच धागा पा दिए, ध्यान की सुई शब्द का धागा पा दिए, जिनी देर तक शब्द का धागा होगा उसके विचों उपजया होया आनंद आनंद नहीं होगा, वो परमानंद होगा। जब शब्द नाम से परम आनंद उसको कहते हैं परम आनंद, परम आनंद। सतनाम शुरू ऐसे प्रकार जो कोई विचार करता करता विचार करता करता विचार करता करता विचारा का अंत पा दे उसको कहते हैं प्रेम प्रगट हो गया, वो सतनाम शुरू। जो विचार करता करता विचारा का अंत हो जाएगा उसको कहते हैं प्रेम प्रगट हो गया। ये विचार बन गए सचमुच अर्थ वो प्रेमी अपने प्रेमी में कुछ नहीं कर सकता। जो विचारों का अंत हो जाए फिर पति परी को बैठा चौकड़ी मार बैठा, उनका एक ही विचार है देवा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नाम। तो जो अंदर विचार घूमने कौन तो सोचेगा धरती कभी है गर्म है तो इस पास तुर पेगा। जो विचारों का अंत हो जाए उलूदियां देखा भी चुगल रहा है उसमें यह विचार भी नहीं पता लगता कि पानी गर्म होकर खोल बनता है जब सतन हो तो है उसमें सबसे प्रेमी याद है जब सतनाम शुरू। इसका मतलब वो हो गया जब विचारों का अंत हो जाए प्रेम उपज गया तो प्रेम परमात्मा नाल जोड़ गया। जो विचारों का अंत हो जाता है तो उस वक्त इस इंसान की बुद्ध ऐसे ध्यान में टिकती है, सिर्फ प्रेमी के ध्यान में टिक जाती है। जो कोई प्रेमी के ध्यान में टिक जाएगा तो उस वक्त उस बैरूनी तौर पर किसी किस्म का दुख महसूस नहीं होगा। क्यों कभी देखा कि डॉक्टर ने डॉक्टर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाता है तो नाल गल्लां करन लग जाता है। क्यों डॉक्टर पूछा क्यों, कहते ताकि बच्चे का ध्यान जो है मेरी गल्लां विच आ जाए तो मैं टीका लगा रहा। जे डॉक्टर एक बच्चे की पीड़ा भुलाने वास्ते अपने गलों का सहारा लैके उसका ध्यान बदलता है तो गल पक्की जे
तो जो प्राणी भी अपना दूसरे पासों ध्यान हटा के दूसरे विकारों को ध्यान हटा के एक जगह से ध्यान कर ले अपने प्रेमी विच, सिर्फ प्रेमी विच, ताकि याद रखना कि जो प्रेमी में ध्यान टिक गया ताकि बैरनी दुख जोड़ा है और उसको पता नहीं चल सकता कि दुख की है। जो किसी की लिव टुटेगी, जो किसी का ध्यान टुटेगा तो उदों दुख महसूस होएगा, और दुख महसूस होएगा कि दुख की है महसूस होएगा। ख्याल करना, एक राजा सी, राजे का इकलौता पुत्र बीमार हो गया, बहुत बीमार होया। उसने वैदा ने बुलाया, वैदा ने कह दिता साढ़े वस तो बाहर हो गई गल, राजा तेरा पुत्र बच नहीं सकता, साढ़े वस तो बाहर है गल। तो फिर कहना मैं की करा, हुण तां खुदा ही इसको बचा सकता है, परमात्मा ही बचा सकता है, दवाई नहीं बचा सकती, कोई दवा ही बचा सकती है। कहते मैं अपने पुत्र के कोल बैठा, राजा रानी के कोल बैठी है, आखिरी लम्हा से बेटा इकलौता पुत्र बड़ा प्यारा सी, राजे थकावट करके नींद आ गई है। सारा दिन ख्याल करता रहा पुत्र का ख्याल करता रहा, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। हर जगह नींद आ गई, ख्याल मुक गए, ख्याल करना ख्याल मुक गए, सो गया। इधर के ख्याल मुके, उधर सुपना आ गया, नवे विचारों ने जन्म ले लिया। सुपने में की वेख रहा, उसके 6 पुत्र ने 6 पुत्रों के नाल खेल रहा, बड़ा मस्त है, बड़ा खुश हो रहा है, खेल है, हसदा है, बड़ा हसदा है, गलौकड़ियां पांदा है, 6 पुत्रों के नाल गलौकड़ियां पांदा सुपने में। अचनचे चीख की आवाज मारी, रानी ने आंख खुल गई तो पुत्र मर गया, एक रोता पुत्र मर गया। राजा बड़ा हंसया, राजा हंसया, नमस्कार की थी परमेश्वर ने, सुख का साह लिया। रानी ने कहा राजा तैनू की हो गया, तेरा इकलौता पुत्र से मर गया, तू दुख नहीं महसूस किया, तू रोया नहीं? कहने लगे मैंने समझ नहीं आ रही सी, मैं समझ गया, मैं 6 रोवा के एक नो रोवा जब सतनाम श्री। मैंने दसो मैं 6 रोवा के एक नो रोवा। मैं लिखा सुपने में मेरे 6 सन, 6 नाल मैं प्यार करता सी, वो सुपना सी 6 मर गए, 6 चले गए। जगत भी सुपना जब सतनाम श्री इतने एक मिलया सी, एक मर गया। मैं समझ गया ना, राजे ने आखिया मैं समझ गया ना मैं एक नो रोवा ना मैं 6 नो रोवा। वो भी सुपना सी, ये भी सुपना है, ते मैं हूं परमा आनंद की प्राप्ति ਲਈ बाकी समा लगा दिया जब सतनाम श्री। ख्याल भी मुक गए, विचार भी मुक गए जब सतनाम श्री। जो ख्याल मुक गए तो विचार मुक गए, जो मुक गए तो फिर आनंद की प्राप्ति हो गई, परमानंद की प्राप्ति हो गई। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी विचार दस रहे हैं किस प्रकार के। सतगुरु जी कहते हैं कि आओ कि कैसा रस है, कैसा रस है, उस रस बारे जिक्र कर रहे हैं। जेड़ा रस परमा आनंद विचों चोरिया जब सतनाम श्री वाहिगुरू, जेड़ा रस बाहर ब्रह्म के प्रेम रूपी रस चोरिया, वो रस कैसा है, आओ शर्सन। पहला आवड़ी पंक्ति पढ़ी गई है जब सतनाम श्री वाहिगुरू, कुछ ही बोले शब्द
दोबारा पर गुरमुख हर रस चाखै कोय, तिस सदा आनंद होए दिन राति पूरा बाग पर तत्व परमाल पाद जब सतनाम श्री गुरमुख हर रस चाखै कोय। गुरमुख सतगुरां दे सन्मुख रहने वाला, गुरमुख जो हर समय गुरु की शरण में रहने वाला, गुरमुख जो हर समय गुरु की आज्ञा मनने वाला, गुरमुख जिसका मुख अते मन गुरु वाल होवे, मन करके भी गुरु वाले होवे तो मुख करके भी गुरु वाले होवे। गुरमुख जेड़ा सिर्फ मुख करके गुरु वाल बैठे तो मन बाहर फिरदा होवे वो गुरु मुख नहीं हो सकता। गुरमुख वही है जेड़ा मन करके भी गुरु वाल मुंह कर लवे तो मुख करके भी गुरु वाल मुंह कर लवे, उसनूं गुरमुख कहते हैं। एक और शब्द गुरमुख तरतीब विच रहने वाला है, मनमुख बेतरतीबा है। जंगल में बूटे अनेक होंगे ने पर बेतरतीबे होंगे ने। जंगल में गुलाब के फूल भी हो सकते हैं पर कोई सुनने नहीं जाता। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किले ना पाओले, क्योंकि बेतरतीबे बूटियां करके उससे खतरनाक जानवर भी बना ले बैठे हैं। बेतरतीबे बूटियां करके लुटेरे भी उठे बना ले बैठे हैं। उसे सहम है, उसे डर है, उसे आनंद नहीं हो सकता। पर वही बूटे जो बगीचे होंगे ने, एक माली की नजर होंगे ने, खेड़ा है, सुगंधी है, लोग सैर कर जाते हैं, लोग उसे आनंद लैन जाते हैं। बाग यही समझना मनमुख बेतरतीबा है, गुरमुख बगीचे का बूटा है। जब सतनाम श्री वाला मनमुख जंगल के बूटे ने, मनमुखा के कोलों ना कोई गुण है, ना उपकार है, ना फल पिना छाओ। मनमुख बारे कह दिता ना फल पिना छाओ, उन्होंने कोई छाओ नहीं मान सकता, ना कोई फल ले सकता। वो तो डरावने ने, उन्होंने अंदर राज माल रूप जात जोबन पंजे थग लुटे हुए, उन्होंने अंदर एकांत मोहंकार विकार बना ले बैठे। पर गुरमुख सतगुरु माली हैं, उस माली के बगीचे का बूटा है। ये जो सतसंगत है, ये सतगुरां दा हर का बागरा, ये हरि का बगीचा है। जब सतनाम श्री वाले इसका माली एको गुरु है, सिंचन हार है, एक है माली खबर तक है, पांच पत डाली एको ही माली है। आस पास बिखुआ के पूंजा आशा संगत बगीचे से बाहर कभी चले जाना तो बाहर ईर्खा द्वैत कपट छल जय पड़ी हुई है। बीच अमृत है भाई, कोई सत्संगत विच आवे तो अमृत है। आस पास बिखुआ के पूंजा बीच अमृत है भाई रे। मनमुख बाहर फिरते हैं, गुरमुख इतने बैठे हैं। जब सतनाम श्री गुरमुख हर रस चाखै कोय, सवाल वही मान सकता है जिसने चखिया। गुरमुख गुरु की शरण में रहने वाला ही हरि नाम के रस में चख के स्वाद लेते हैं। जब सतनाम श्री वाले साहिब कह रहे हैं, धन गुरु अमरदास फिर स्वाद लेता है। कैसा स्वाद का आनंद है? तिस सदा आनंद होवे दिन राति, दिन रात हमेशा ही उसके आत्मक आनंद विच रहता है। इसका मतलब हरि का रस आत्मक आनंद देता है, सिर्फ आनंद नहीं, आत्मक आनंद देता है। जिसको आत्मक आनंद मिलेगा उसको आत्मक जीवन मिलेगा। हरि का रस आत्मक आनंद देता है, परंतु साहिब कहते हैं पूरे भाग प्राप्त हुए, पर यह हरि का रस पूरे भागा करके प्राप्त होता है। जब सतनाम श्री वाले शब्द का भाव है, रहावी पंक्ति का उस शब्द का है। हाँ जी, हर नाम धन निर्मल अत अभाना।
का नाम धन पितर है, आत्मक जीवन को पितर करने वाला है। हर नाम धन निर्मल अत अपरारा अत इतना है कि नाम मुकन वाला तो कभी भी नहीं आएगी। जिसके पास ये धन होएगा खात खर्चत किचन फुटत नहीं अगणत भय भंडारे, ऐसा धन है खाओ खर्चो रंग मिल बनाई तोड़ न आ गए वध तो जाए। और धन जड़ा मर्जी लै लो वंडन लग्या मुक जाएगा, पर यह धन वंडन लग्या वध गया। जो 10 ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ 10 ਹੋਰ ਜਪਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ 10 ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ 10 ਹੋਰ ਜਪਾਈ ਜਾਣਗੇ, तो जपदे जपदे गिनती कर ही नहीं सकते कितने की जप रहे हो। फिर सतनाम श्री हुआ। हाँ जी, अगली पंक्ति गुरु का शब्द भरे दोबारा करो। गुरु का शब्द भरे भंडारा। भाई सारे जब सतनाम श्री हुआ। गुरु का शब्द अमोलक दात है। रतन का अर्थ पता की होता है? अमोलक दात। गुरु का शब्द रतन है, हीरे एक जड़ है, हीरे। गुरु का शब्द अमोलक दात है। वो ऐसी अमोलक दात है जी परमात्मा की सिर्फ सलाह दे गुणा रूपी हीरिया भरी हुई है। जब सतनाम श्री हीरे जीत जलाओ। परमात्मा की सिर्फ सलाह दे गुण रूपी हीरिया भरी हुई है। भरे भंडारा तो जेड़ा जिसने सतगुरु कहते हैं जिसके पास नाम मुकण वाला धन हो गया, निर्मल दामन मिल गया, तो उसकी कितनी बख्शिश होगी। उस नाल जोड़न करके जेड़े गुरु शब्द भंडार ने सारे भंडार गुणा दे उसके हिरदे टिक जाएंगे। जब सतनाम श्री हुआ। गुर का शब्द बने भंडारा। इसे ख्याल करना, शब्द शब्द जब पढ़ते ना दोदे में सिहारी है। ख्याल करना जो सिहारी हो जाती है तो फिर अर्थ करना पैदा शब्द विच। जिमें भगत आवे ना, भगत में पते सिहारी होवे अर्थ कर लगे पढ़ना पेगा भगत विच। जो नानक कके सिहारी आ जाए तो पढ़ नानक विच, क्योंकि जो सिहारी आए सानू विच अर्थ लैके जाना पड़ेगा। जब सतनाम श्री आए तो जिथे ऊपर भी ना होवे सिहारी भी ना होवे उत्थे तो अर्थ करते हैं हे नानक। उत्थे नानक हे नानक जो ऊपर आ जाए फिर सानू अर्थ करना पैंदा नानक नूं जब सतनाम श्री आए। इस तरह के अर्थ बनते हैं सिहारी बिहारी कर दो। ये शब्द है कवन सवेला कवन कवन तिक वार कवन 3 प्रकार के हैं। इस करके वो अर्थ करने लगे उसके मुताबिक ही सारे अर्थ करने पेंगे। इसे शब्द दबे सिहारी हो करके इस शब्द शब्द की ने भरे भंडारा। जब सतनाम श्री गुरु शब्द प्रभु जी से सरावे गुण भरे हुए हैं। हाँ जी, अगली एक बार सारे जब सतनाम श्री आत्म जीवन जे अगर कोई आत्मक मोह में बदलती है तो यह गैर है जी आत्मक मौत मार देती है। बंदे का शरीर मर जाए पर रब करे कोई आत्मक मौत ना मरे। जब सतनाम श्री है आत्मक मौत करे ना कोई मरे। जीवन की है जेड़ा मरण तो बाद भी जिंदा रहे। जीवन तो ही है, कहने मौत तो बाद भी जिंदगी है। कहने शरीर मर जाए बंदे का पर बंदे का जीवन ना मरे, फिर मौत तो बाद भी जिंदा रहे। जो अगर बंदे का शरीर नहीं मरिया तो जीवन मर गया, दोनों में मार लेगा। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, ना जीवन भी मर गया। शायद कहते लाइफ आफ्टर डेथ है, जिंदगी मौत तो भी बाद है। ये अगर शरीर मर गया कोई गल नहीं, लेकिन जीवन ना मरे। आ देखा जी जिन्हों का जीवन नहीं मरिया ना, आज असी कहने हाँ धन भगत कबीर जींदे भगत नामदेव जी देखा ना जींदे ने। साहब जी ने तो एक शब्द कह के गल स्पष्ट कर दी, नानक मूए ना आखी है। उन्होंने कदे मरिया होया ना आखना, जो मरिया होया आखेगा साधु कहने ना तो दसा
नहीं होते। सारे कहते हैं परमेश्वर के नाम तो बिना, इस नाम धन तो बिना होर जितने भी हैं सारे जहर समझ, जहर हैं, आत्मक मौत मारने वाले हैं। हाँ जी, क्योंकि उसने हंकार पैदा किया। हंकार से माया मोह विच सड़दा रहिंदा है, जब सतनाम श्री वाहिगुरू सड़दा रहिंदा है। हाँ जी, सतनाम श्री शब्द का प्रकाश, शब्द दीपक। मन लो के शब्द दीवा है। जहन का अर्थ है सारे संसार में, सारी लुकाई हुई सारी सृष्टि में प्रकाश करें। शब्द दीवा है, सचमुच दीवा है, सचमुच दीवा है शब्द। दीवा कितना सुंदर क्यों ना हो, दीवे विच बत्ती भी होवे, दीवा तेल नाल भरिया भी होवे, बड़ा कीमती दीवा होवे, पर एक जोत ना हो। दीवा सुंदर भी तेल नाल भरिया होया भी बत्ती नोई वाला भी प्रकाश नहीं कर सकता। जब सतनाम श्री कौन कहता है दीवा है? इसका मतलब है कि जोत के बिना दीवा भी रोगी है, जोत के बिना तेल भी रोगी है, जोत के बिना बत्ती भी रोगी है। बीमार नहीं, तेल भी बीमार है, जोत भी बीमार है, बत्ती भी बीमार है, दीवा भी बीमार है। जे वो एक दीवा तेल नाल भरिया होया बत्ती समेत बिना जोत को प्रकाश नहीं कर सकता, तो शरीर रूपी दीवा भी बेशक प्राण का तेल भी पे जब सतनाम श्री होगा। श्वास भी अंदर हैं, पर एक शब्द की जोत चाहिए है। जो अगर नहीं तो प्राणा वाला प्राणी भी बीमार है, शरीर भी बीमार है। जब सतनाम श्री ये दीवा नहीं चलता। इसका मतलब ये हो गया कि शब्द ही जोड़ ही दीवा है। जब सतनाम श्री, इसका मतलब है कि दीवा आप कुछ नहीं, इसका मतलब दीवा आप कुछ नहीं, तेल कुछ नहीं, बत्ती कुछ नहीं, दीवा आप कुछ नहीं, एक जोड़ ही दीवा है। जब सतनाम श्री, इसका मतलब शरीर कुछ नहीं, प्राण कुछ नहीं, एक शब्द ही दीवा है जो सारे संसार में प्रकाश करे। जब सतनाम श्री हाँ तो जिन्होंने हरि रस चखे तो आत्मक जीवन होगा पुत्र हो गया। पुत्र नाम नहीं हंकार भी मैल होता है। सच्चे ही सच्ची भक्ति ही तो ही सुख पैदा होते हैं, आत्मक सुख मिलता है। जिन्होंने हरि रस चखे कोई हरि के दास हैं। हाँ जी, उन्होंने अंदर हमेशा खुशियां रहती हैं, कदे सोग नहीं रहता। तो आप दुखों को उन्होंने छुटकारा पा लिया है, तो दूसरों को भी दुखों को बचाते हैं। जब सतनाम श्री सतनाम है विचार देते आया आप मुक्त अगर मुक्त करावे तो आपको दुखा को छुटकारा पाते हैं। तो कई सोच रहे हैं कि दूसरे को दुखा को छुटकारा जो आगे देने एक शब्द है सतगुरा का, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया दे। भी नाम का दीवा है जेड़ा प्रकाश करता है दुखा के तेल अनुसार के। ठीक है ना, ये तो समझ आ गई। भगत ने गोलक ने हरि रस चखण वाले ने अपने अंदर नाम का दीवा बाल लिया, अपने जो दुख उसने सार दिते। एक बात समझ आ गई, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया थे।
उसने अपने दुख तो साड़ दिते, पर एक दीवे का असूल है, उस नाम का इतना सम्राट था, उसने एक वाणी सारे को साड़ दिते। फिर भाई उन दीवा अगों जलाने वास्ते तो दुखों का तेल चाहिए ना, जो सतनाम श्री वाहिगुरू वो भगत की करता है, दीवे का प्रकाश करना ही करना है। जेड़े जेड़े भगत का संग करते हैं अपने दुखों को साड़न तो बाद भगत उन्होंने दुखों को साड़ करके खाली करना, तेल पाई करना, जो सतनाम श्री फिर भगत की करना, जो जो शरणे चाहते हैं उन्होंने दुख इकट्ठे किया है तो अपने वीर पा पा के साड़ी करते, सतनाम श्री आप दुखों से छुटकारा पाता है तो दूसरे भी दुखों को छुटकारा दिवा देता है। हाँ जी, हरि का नाम जपदा तो फिर आत्मिक सुख होता है। जितनी लुकाई है सारी तड़पती फिरती है, दुखी होकर गिरती है बिना सतगुरु जो सतनाम श्री निगाह प्रति सर्दी रहती है, शांत नहीं प्राप्त करती, बात है जिन्हें आग में कोई जलता है। हाँ जी, सतगुरु मिल जाए तो अंदर की आग बुझ जाती है। हाँ जी, नानक पैर में ठोकर नहीं है, स्याही नहीं है, हे नानक जिन्होंने गुरदे के अंदर ये आग बुझ गई है, उन्होंने नाम जपया है फिर सुख पाया है, दुख सतनाम श्री ये आज की विचार सी जो आपने शरण की है। ये ठीक है, तो विचार करते हैं समा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ये ठीक है, आज समा बहुत ज़्यादा लग गया। दास ने भी ये सोचा 1 साल के बाद आप जी दीदार हुए हैं, ये 1 साल के बाद 1.5 घंटा वध भी लग गया है तुहाडे दर्शन करते हैं। वैसे तो चित कर गया कि तुहाडे दर्शन होंदे ही रहन समाप्ति क्यों करा, क्योंकि तुहाडे दर्शनों नाल 4 अखर अंदर निकलते हैं, कोई सुझदा है जब सतनाम कोई बोलने का चित करता है, पर जो तुसीं प्यार कर सुनते हो वो तो रात के जवान कल से फिर एक शब्द की विचार अंदर थोड़ी सिमरन साधना 2 समागम रह गए हैं। आप आना होर मन के नाम लैके आना, जिन्हें सतगुरु जी बख्शिश करेंगे अपने ये समागम होंगे, गुरु के होंगे। आप समाप्ति हुई है, समय ज़्यादा हो गया। आज मुझे खुशी है कि शाम के जो दीवान 1 बजे प्रारंभ होने ने वो आज कुछ गुरु प्यारे ज़्यादा साढ़े को पहुँच गए हैं कीर्तन करने वाले। आज मुझे खुशी है जलंधर तो भी एक भैन जी जिन्होंने आज सच्चे पातशाह की बख्शिश न अरदास हुई है कीर्तन की। मेरा विचार है कि आप दोपहर के 12 बजे को आज प्रारंभ करके शाम तक 4:30 बजे तक ले जान। प्रोग्राम तो सी कि वो शब्द कीर्तन बोलेंगे, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है तो जब दोपहर के एक शब्द सारे पढ़ लें जब सतनाम श्री वाहिगुरू, ताकि दरवाई प्रसाद है ये ना कोई कहे कि मैंने समय नहीं मिला। इस करके सारे एक शब्द की हाजिरी पढ़न तो गुरु कृपा करेंगे। सतगुरु एक गुरु प्यारे माया पेट करके हैं, क्योंकि सारी माया गुरु की माया जितने योग संज्ञा खर्च कर लेना। आप अरदास करना जो गुरु ग्रंथ साहब ने किस्त बख्शिश की है उसके तरह ही प्रचार हो सके, तो आप जी के चरणों के इसी तरह सेवा करने का समा मिलता रहे। अंतिम श्वास तक इस रचना थोड़े चरणों के जोड़े चारण का समा मिलता रहे। तो आओ आनंद साहब जी का पाठ करना 12 बजे तो फिर हाजिर आज का दिन है। कल दास ने 10:30 बजे के बाद आप जी तो आज्ञा लेनी है, क्योंकि आप जी के पढ़े इतने समागम सिख संगत ने बख्शिश किए हैं, क्योंकि 300 साल हर सेवा प्रकाश में समर्पित करने वास्ते कई जगह पर ड्यूटियां लगी हुई हैं। दास में तो पहुँचना होता है, आप कृपा करके बख्शिश करके असीस दे के पहुँचना ताकि जह जाइए कहाँ से हिले सारी असीस नाली से ला हो सकता है कोई वरना कुछ नहीं। और हम आज शाम के 5 बजे अमृत संचार होगा और जिन्हें अभी तक अमृत पानी से गुरु वाले बढ़ना तो आप स्वयं के शीश स्नान करके उत्थे पहुँचना। इसे दरबार के नाल दूसरा जो भाग है उस साल कमरे अमृत संचार होंगे तो फिर गुरु प्यारे अमृत छक के पहुँचेंगे, उन्होंने स्वागत किया जाएगा कीर्तन रूप से। जब सतनाम श्री वाहिगुरू कीर्तन रूप के व्यक्तिगत रूप नहीं कीर्तन रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी जो गुरु पंथ खिलाता है उस वक्त कीर्तन रूप
करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में गुरु पंच होता है। आप दर्शन करना, जिथे आप जोत के दर्शन कर रहे हो उसे अज रात को आप जुगत के भी दर्शन करना। जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जुगत गुरु पंथ है। जोत और जुगत का सुमेल है। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, जोत और जुगत का सुमेल है। फिर जब जुगत प्रकाश करती है तो फिर एक जगह पर असं पहुँच जाते हैं जब सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर कितने पहुँचते हैं? जब खालसा जी जागती जोत में, फिर जोत के अभेद होंगी, जुगत आ जाती है, सुमन की जुगत आ जाती है। और ये लोग सुखी तो लोग सहेले नानक घर पर आते हुए और ग्रंथ साहब जी का पाठ सर्व करो, ग्रंथ अरदास वो